بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں پروفیسر غازی احمد صاحب سابقہ کرشن لال کے بارے میں اجمالی سا جائزہ لیا تھا، جن میں ان کی ابتدائی کچھ چیزیں بیان کی گئی تھی۔ تو اسی چیز کو لے کے ہم آگے چلتے ہیں۔ پروفیسر صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس ٹائم 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا اور میری عمر 13 سال تھی۔ ہم سکول سے جب نکلتے تو اکثر جو ہمارے ساتھ ہمارے مسلمان کلاس فیلو ہوتے تھے، ان سے کسی نہ کسی بات پہ، کسی نہ کسی موضوع پہ، مسلمانوں کو لے کے اور اسلام کو لے کے کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی یا بحث ہو جاتی۔ تو اکثر میرا یہ سوال ہوتا کہ اگر آپ سچے لوگ ہو تو پھر آپ اتنی غربت میں اور اتنی تنگ دستی میں زندگی کیوں گزار رہے ہو؟ جس طرح آپ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ آپ کا ایمان اللہ پہ ہے اور اللہ ہی آپ کا مددگار ہے، تو پھر آپ لوگ اس قدر غریب کیوں ہو؟ بچپنا تھا، یہ سوال اکثر ذہن میں اٹھتا، کیونکہ جتنے ہندو تھے ہمارے ارد گرد وہ اچھے کھاتے پیتے تھے اور بڑے بڑے ان کے کاروبار تھے، لیکن مسلمان جو تھے وہ بہت ہی چھوٹے موٹے کام کرتے تھے اور بڑی مشکل سے ان کی گزر بسر ہوتی تھی، اور ان میں بھی زیادہ تر لوگ جو تھے وہ ہندو بنیوں کے قرض دار ہوا کرتے تھے۔ تو یہ سوال ہمارے ذہن میں اٹھتا، ہم ان سے کرتے، تو جو ہمارے کلاس فیلو ہوتے وہ ہمیں جو جواب دیتے وہ یہ ہوتا، چونکہ ہم نے اللہ سے ایمان مانگا ہے اور ہمیں اللہ نے ایمان تحفہ دیا ہے، تو اس لیے ہم ایمان کے ساتھ ایک دن کامیاب ہوں گے، یعنی جنت میں جائیں گے، اور آپ لوگ دنیا کی تو زندگی اچھی گزار سکتے ہو لیکن آخرت میں آپ لوگوں کا کوئی حصہ نہیں۔ یہ بات مجھے بڑی چبھتی، مجھے لگی، تو میں نے اس پہ سوچنا شروع کیا۔ اس پہ میں اپنی طرف سے ایک لائٹ نوٹ کے طور پہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی جب چھوٹے تھے ہمارے ذہنوں میں بھی یہ سوال آتا تھا کہ جو اغیار ہیں وہ تو بڑی بڑی گاڑیوں میں اور بڑے بڑے محلوں میں اور بڑے بڑے بزنسز ہیں ان کے، اور ہم جو ہیں وہ ہر جگہ غریب بھی ہیں اور مار بھی کھا رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہی ہمارے بڑے بتاتے، کیونکہ ہم نے آخرت کی زندگی مانگی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں جو ہے وہ انعامات دے گا۔ لیکن چیزیں اس کے برعکس تھیں، وہ یہ کہ جب انگریز نے ہندوستان پہ قبضہ کیا تو اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ انگریز نے مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی، تو ایک خاص نظریے کے تحت اور خاص طور پہ مسلمانوں کو جو ہے وہ پیسا گیا، ان کے بزنسز کو تباہ کیا گیا، زمینیں ان سے چھین لی گئیں، اور مسلمانوں کو ہر طرح کے عذاب سے اور ہر طرح کی مشکلوں سے گزارا گیا، تاکہ اس لیے کہ مسلمان دوبارہ اٹھ نہ سکیں اور ہم سے حکومت چھین نہ سکیں۔ تو اس خاص مقصد کے تحت انگریزوں نے مسلمانوں کو ہندوستان کے اندر پیسا، ایسی چکی کے اندر پیسا کہ وہ صدیوں بعد بھی اٹھ نہ سکے۔ تو یہ خاص مقصد تھا ان کا، مسلمانوں کو پیسنے کا اور غریب رکھنے کا، کیونکہ نوکریوں میں ان کو حصہ نہیں دیا جا رہا تھا، ان کے جو بزنس تھے وہ چھین لیے گئے، زمینوں پہ قبضے ہو گئے، تو اس طرح مسلمان نہایت ہی غربت میں زندگی گزارنے لگے۔ ہم واپس آتے ہیں پروفیسر غازی احمد صاحب کی طرف۔
तो गाई साहब फरमाते हैं कि मैं इसी सोच के साथ घर आता, सोचता कि ईमान क्या चीज़ है कि जिस पे ये लोग इतना फ़ख्र करते हैं। तो इस तरह मेरी मुसलमान हम जो क्लास फेलो थे उनसे बातचीत होने लगी। मैं इस्लामी लिटरेचर की तरफ राग़िब हुआ और मैंने इब्तिदाई चंद चीज़ें जो हैं वो पढ़ी। फिर इसी तरह एक दिन सारे जो मेरे क्लास फेलो थे मुसलमान बच्चे वो बड़े खुश थे और लैलतुल क़द्र के बारे में बात हो रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि ये लैलतुल क़द्र क्या है। तो मेरा एक हम जमात था रेशम खान, उसने मुझे बताया कि लैलतुल क़द्र क्या है। तो मैंने दिल में तहैया किया कि आज रात मैं भी जागूंगा और मैं भी जो है वो ऊपर वाले से मांगूंगा कि मुझे भी वो नेमत अता की जाए जो इन लोगों के पास है। लिहाजा मैं घर आया, अपनी माँ से कहा कि मैं आज बाहर सोना चाहता हूँ। माँ ने कहा क्यों बेटा, क्यों बाहर सोना चाहते हो? तो मैंने उन्हें बताया कि इस तरह मैंने आज सुना है। तो माँ ने मुझे कहा कि वो तो मुसलमानों की है। बहरहाल मैंने थोड़ी बहुत बहस के बाद माँ जी को राज़ी कर लिया और उन्होंने मेरा बिस्तरा बाहर लगा दिया। इस तरह मैं बाहर सो गया। रात को मैं दो जानों बैठ गया और ऊपर वाले से मांगने लगा। न जाने कब मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। सुबह जब मैं उठा तो मैं बड़ा शर्मिंदा था कि मैं तो ऊपर वाले से कुछ और मांगने के लिए जाग रहा था, लेकिन मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। और मैं जो मेरे क्लास फेलो थे वो भी मुझसे पूछेंगे तो मैं शर्मिंदा सा था कि मैं जाग नहीं पाया। बहरहाल ऐसे ही ये दिन गुज़र गए और मेरा जो इस्लाम की तरफ मैलान है वो बढ़ने लगा और मैंने चंद कुतुब जो हैं वो पढ़ी। तो मेरी इसी दिलचस्पी को लेकर मेरे जो क्लास फेलो था रेशम खान, उसने मुझे कहा कि हमारे यहाँ एक मौलाना साहब हैं, मैं आपको उनसे मिलवाना चाहता हूँ। लिहाजा मैं अपने क्लास फेलो के साथ एक दिन मौलाना अब्दुल रऊफ़ साहब से मिलने चले गए, जो वहाँ पे एक मशहूर इमाम थे और बड़े नेक और तकवे वाले थे। मैं उनके पास गया और सारी रुदात जो है वो रेशम खान ने उनको सुनाई। तो वो बड़े खुश हुए और मुझे ताकीद की कि बेटा, मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि तुम ये मज़हब इख्तियार करो या उसी मज़हब में रहो या किसी और मज़हब में जाओ। बस मैं तुम्हें ये ताकीद करता हूँ कि जब भी तुम रात को सोने लगो तो ऊपर वाले से, अपने भगवान से तुम ये दुआ करनी है कि जो हक़ का रास्ता है, जो सच्चाई का रास्ता है, जो हदायत का रास्ता है, मुझे वो रास्ता दिखा और उस रास्ते पे चला, क्योंकि मैं एक कमज़ोर इंसान हूँ। मैं उस हिकमत को समझ नहीं सकता हूँ जो आपकी हिकमतें हैं। लिहाजा मुझे उन हिकमतों से रोशनास करा और मुझे उस रास्ते पे चला। लिहाजा मैं ये दुआ याद करके घर आया और मैं रोज़ाना रात को ये दुआ पढ़ के सो जाता। 8 दिन गुज़र गए, मुझे कोई इसका रिज़ल्ट नज़र ना आया। तो मैं थोड़ा सा मायूस होने लगा कि आज 8-10 दिन गुज़र गए हैं और मुझे इसका कोई रिज़ल्ट नज़र नहीं आ रहा। 9वां दिन था, मैं रात को सोया। मैं क्या देखता हूँ कि मेरा एक क्लास फेलो है, वो मेरे घर के पास से गुज़र रहा है। मैं उससे पूछता हूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो? वो मुझे कहता है कि मैं मक्का और मदीना जा रहा हूँ। मैं उसे कहता हूँ कि मुझे भी साथ ले चलो। वो कहता है आ जाओ। लिहाजा हम एक साथ चल पड़ते हैं। हम गांव से थोड़ा दूर जाते हैं तो एक बंदा जो साधुओं के लिबास में होता है, हिंदुओं के जो साधु होते हैं वो एक ख़ास किस्म का लिबास पहनते हैं। तो वो साधु ने अपना वो साधुओं वाला लिबास पहना हुआ था। तो उसने हमसे पूछा कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो?
हमने कहा खुश होकर बताया कि हम मक्का और मदीना जा रहे हैं। तो वो हमें कहने लगा कि तुम जिस रास्ते से जा रहे हो ये रास्ता बड़ा ख़तरनाक है और दूर भी है, और मैं आप लोगों को एक और रास्ता बताता हूँ, तो उस रास्ते से आप जल्दी पहुँच जाओगे। लिहाजा मैं और मेरा क्लास फेलो उस साधु के पीछे चल पड़े। थोड़ी दूर गए तो बड़ा खौफनाक और घना जंगल था। उसने हमें वहाँ ला के छोड़ा और हमें कहने लगा कि मैं तो शैतान हूँ, मैंने तो आपको अब तुम्हारे रास्ते से हटाना था, भटकाना था, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, मैं चला। ऐसे में वो साधु वहाँ से गायब हो गया। मैं बड़ा डरा और इसी डर के मारे मैंने वापस गांव की तरफ दौड़ लगा दी। मैं गांव पहुँचता हूँ और थोड़ी देर के बाद मैं क्या देखता हूँ कि आसमान पे एक चांद निकलता है जो 14वीं के चांद से बड़ा चांद होता है, जिससे हर तरफ रोशनी फैल जाती है। मैं क्या देखता हूँ कि मेरा एक और क्लास फेलो जिसका नाम मोहम्मद सादक होता है वो वहाँ से गुज़रता है। मैं उससे पूछता हूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहता है कि मैं मक्का और मदीना जा रहा हूँ। मैं बड़ा खुश होता हूँ कि अब तो अंधेरा भी नहीं है, हर तरफ रोशनी है, तो सफ़र करना आसान रहेगा। मैं उसे कहता हूँ कि मुझे भी साथ मक्का और मदीना ले चलो। लिहाजा हम दोनों सफ़र शुरू करते हैं और हम मक्का पहुँचते हैं। जब हम मक्का पहुँचते हैं तो मैं क्या देखता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकनी यमानी और हतीम के दरमियान सहाबा कराम के साथ बैठे होते हैं। मैं मोहम्मद सादक को कहता हूँ कि तुम मुसलमान हो, तुम पहले आगे बढ़ो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफा करो। लिहाजा मोहम्मद सादक आगे बढ़ता है, आप सल्लम से मुसाफा करता है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते हैं और मुझे गले से लगाते हैं और कहते हैं, आओ कृष्ण लाल, कैसे आना हुआ? तो मैं उनसे कहता हूँ, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो मुसलमान होने आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपने गले से लगाते हैं और तकरीबन 3 मिनट तक मुझे अपने गले से लगाए रखते हैं। और ये वो घड़ियाँ होती हैं जब मेरी अंदर की दुनिया बदल चुकी होती है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपने पास बिठाते हैं, मेरे हाथ को अपने हाथ में लेते हैं और अपना दूसरा हाथ मेरे हाथ के ऊपर रखते हैं और मुझे कहते हैं कि शहादत पढ़ो। लिहाजा मैं कलमा शहादत पढ़ता हूँ और मुसलमान होता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कृष्ण लाल, आज से तुम मुसलमान हो। तो इस तरह मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर मुसलमान होता हूँ और ऐसे मेरी आँख खुल जाती है। और ये सारा वाक़या मैं सुबह जाके अपने क्लास फेलो मोहम्मद रेशम को बताता हूँ, रेशम ख़ान को बताता हूँ, और वो भी बड़ा खुश होता है और मुझे कहता है कि चलिए मौलाना अब्दुल रऊफ़ साहब के पास चलते हैं। मैंने कहा कि आज तो देर हो चुकी है, कल चलेंगे और ये सारा माजरा उनको सुनाएंगे। रेशम ख़ान कहता है कि सही है, कल चलते हैं। और इस तरह हम दूसरे दिन मौलाना अब्दुल रऊफ़ साहब के पास गए और उनको सारा माजरा सुनाया। तो इन्हीं दिनों में मुझे 3 बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में ज़ियारत होती है। जब तीसरी बार ज़ियारत होती है तो मैं दोबारा मौलाना अब्दुल रऊफ़ साहब के पास जाता हूँ। तो मौलाना अब्दुल रऊफ़ साहब कहते हैं कि कृष्ण लाल, अब कोई गुंजाइश नहीं रही, अब हक़ और सच तुम पे वाज़ेह हो चुका है, लिहाजा अब देर ना करो कि वो रास्ता जो तुम मांग रहे थे वो रास्ता अल्लाह ने तुम्हें दिखा दिया है, लिहाजा अब तुम देर ना करो। तो ऐसे में मैं उनसे कहता हूँ कि ठीक है, मैं आपके हाथ पे इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, लिहाजा
गांव के चंद मुअज़्ज़ज़ लोगों को बुलाया गया और उनके सामने मुझे कलमा पढ़ाया गया। यूं मैंने अपना नाम जो है वो कृष्ण लाल से गाज़ी अहमद रखा। मौलाना अब्दुल रऊफ़ साहब कुछ और नाम तजवीज़ कर रहे थे, शायद शफ़ीक़ुर रहमान, लेकिन मुझे गाज़ी अहमद पसंद था तो मैंने अपना नाम गाज़ी अहमद तजवीज़ किया। बाकी के हालात इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। आप दोस्तों से गुजारिश है कि ऐसे वाक़यात सुनने के लिए और जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह मेरा और आप सबका हामी।